स्टूडेंट्स, कल हमने आपको 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्लियर किया और आज नेक्स्ट 3.2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.2 मैं होप करता हूं कि आप सभी ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे और अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, मतलब उस टाइप के एक तो क्वेश्चन बने इसको छोड़ दिए थे, लेकिन बाकी हमने बोला था कि आपको कर लेने होंगे, आपने कर लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम अभी तक कोई क्वेरीज नहीं आई, इसका मतलब कि सभी ने कर लिया। ओके, ठीक है। अब इसमें एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया रहेगा, उसके बाद 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमें निकालना है। Question number 1. Question number 1, it is given that cos x is equal to minus 1 by 2, where x is lies in a third quadrant. Where x is lies in third quadrant. देखो, क्वेश्चंस में कभी कोई बात बेवजह नहीं देता। इफ इट इज गिवन थर्ड क्वाड्रेंट, इट मीन्स व्हाट, कि ये जो है इसके और इसके बीच में हो। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मीन्स व्हाट, द एंगल एक्स इज लाइज बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे, यानी कि एक्स की वैल्यू is greater than pi but less than 3 pi by 2, 3 pi by 2 ऐसे होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम इस चीज को सॉल्व करें। cos x is given minus 1 by 2, then cos square x is equal to 1 by 4, then 1 minus sin square x is equal to 1 by 4. So sin square x is equal to 1 minus 1 by 4, then sin square x is equal to 3 by 4, then sin x is equal to plus minus under root 3 by 2. Sin x is equal to plus minus under root 3 by 2. Since this axis lies in third quadrant, then we know that in a third quadrant, except tan and cot, all the trigonometric values are negative. So what, sin x is equal to minus root 3 by 2. ठीक है, अब मुझे पता हो गया sin x है। नेक्स्ट, tan x is equal to sin x by cos x, and this is equals to minus root 3 by 2 by minus 1 by 2. Then we will get minus minus cancel, root 3 by 2 into 2 by 1, then this is root 3. This is root 3. हमें मिल गया cos x का तो दिया ही है, sin x कैलकुलेट कर लिया मैंने और tan x कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जब ये तीनों मिल गए तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे, cos का उल्टा sec x and this is equal to minus 2, sin का उल्टा cosec x that is equal to minus 2 by root 3, and tan का उल्टा cot is equal to 1 by root 3. in this way हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऐसे 5 क्वेश्चंस है, मैं एक दो क्वेश्चंस कर लेता हूं। जैसे एक ये कर लिया, और बोलिए कौन सा कर देते हैं, चलो एक सेक वाला कर लेते हैं। इसको क्लीन करता हूं। sec x is equal to 13 by 5, 13 by 5, where x is lies in fourth quadrant. X is lies in fourth quadrant.
Actually, you know that fourth quadrant means x is greater than 3 pi by 2, pi plus pi by 2, and less than 2 pi. फोर्थ क्वाड्रेंट यही होना चाहिए. sec x, ठीक है, ये मिला मुझे. देन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x. देन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 169 बाई 25. देन tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 169 by 25 minus 1. Then tan square x is equal to 169 minus 25 by 25. Then tan square x is equal to 144 by 25. Then tan x is equal to plus minus under root 12 by 5. But you know that plus minus 12 by 5 and it is lies in a fourth quadrant, so we know that the value of tan x in fourth quadrant is negative, so we have to take tan x is equal to minus 12 by 5. Okay, that is equal to minus 12 by 5. Next, look here, हमें tan x की वैल्यू मिल गई minus 12 by 5 and sec x is given 13 by 5. अब इसको क्लीन करता हूं. You know that sec is just reciprocal of the cos x, so cos x is equal to 5 by 13. Next, we know that tan x is equal to sin x by cos x. tan x is equal to, तो यहाँ पे हम tan x की minus 12 by 5 लेते हैं and this is sin x और इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, cos x की वैल्यू कितनी है 5 by 13, तो हम लिखेंगे minus 12 by 5 into 5 by 13, this is equal to sin x, cancel. Then sin x is equal to minus 12 by 13, sin x की भी पता चल गई. Then cosec x is equal to 13 by minus 12 और cot x is equal to just reverse 5 by 12 and this is negative. ये चीज हो गई. ठीक है जी, ठीक है, आप कर लोगे. उसके बाद उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, सेकंड क्वाड्रेंट में है. sin x की वैल्यू दिया 3 by 5, cot x is equal to 3 by 4. This is lies in x in the third quadrant. In this way you can solve each and every question. tan x का दिया है -5 by 12, आप सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. आप हर टाइप के क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो करनी है तो अदर बुक से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो हर तरह के क्वेश्चंस देते हैं. इसमें प्रैक्टिस करने के कम चांसेस रहते हैं, बहुत थोड़ा रहते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे बुक से क्वेश्चंस कर सकते हो. आपके ये क्वेश्चन है साइन 765. क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री. हमने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन के जो एंगल्स होते हैं वो एंगल की वैल्यू आफ्टर 2 पाई वो रिपीट करते हैं. तो 360 का फिर डबल करेंगे तो 720 के पास ये करीब है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 720 को आप लिख सकते हो 2 into 360, मतलब ये है, और एक रोटेशन पूरा घुमा तो 360, फिर दूसरा 720 और फिर यहाँ पे आएगा तो फिर ऐसे एंगल में,
तो 2 इंटू 360 मीन 720, और इसमें अगर हम 45 ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू। तो आप इसको लिख सकते हो, इसका मतलब साइन 45 का, और साइन 45 की वैल्यू तो मुझे मालूम है 1/√2। सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं उल्ट। वो क्या दिया है, इट इज गिवन cosec -1410 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ 1410, इसका मतलब कि ये जो एंगल को मेजर करना है फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉजिटिव था, इट मींस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये नेगेटिव है सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब देखो 720, अब नजदीक इसके जाते हैं, 360 डबल करेंगे 720, फिर डबल करेंगे तो 1440, 1420, लेकिन ये क्या है 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec minus theta, you know that cosec minus theta, cosec minus theta that is equal to minus cos, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस cosec 1410, then you can write here minus cosec, और इसको लिख सकते हैं 1440 को ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 360 माइनस 30, ठीक है, then we will get minus cosec minus 30, again cosec minus theta is equal to minus, so minus, and this is minus cosec 30 degree, and when we multiply we will get cosec 30, and cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, और ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मैं इसको क्लीन करता हूं। नेक्स्ट, ये तो डिग्री में गिवन था, अब ऐसे भी तो हो सकते हैं कि रेडियन में दिए जाए, जैसे मैंने लिखा 10 90 π/3, उसमें एंगल अगर डिग्री में था तो 360 प्लस करते थे रिपीटेशन के लिए, इसमें 2 पाई करेंगे, तो यहाँ पे tan है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2 पाई, एक पूरा रेवोल्यूशन, फिर 2 पाई, फिर 2 पाई, अगर हम इसको 6 पाई कर देते हैं, यानी कि एक बार 2 पाई, दूसरी बार 2 पाई, 4 पाई, फिर एक बार 3 पाई, उसके बाद 2 पाई प्लस π/3, अगर लिखेंगे तो 18 प्लस पाई 19 π/3, ठीक है। अब आप लिखेंगे देन 10 π/3, एंड वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 π/3, 10 π/3 की वैल्यू होती है √3, आंसर, वेरी सिंपल। इसको फिर क्लिक करता हूं। नेक्स्ट, साइन -11 π/3, सिंपल, माइनस है साइन का, तो साइन माइनस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, माइनस यहाँ पे लिखेंगे साइन 11 π/3, साइन 11 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 पाई माइनस 4 12, हाँ ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 4 पाई माइनस π/3, ये हो जाएगा 12 माइनस पाई 11 पाई, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई माइनस π/3, अगेन 4 पाई, यहाँ से 1 2 पाई, फिर 2 पाई, अब -3 तो इस साइड में आएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन
माइनस पाई बाई थ्री एंड साइन माइनस थीटा, अगर फिर से क्या होगा प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस, यहाँ पे माइनस साइन पाई बाई थ्री एंड दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री एंड साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू, अंडर रूट थ्री बाई टू। बहुत आसान है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, it is given cot minus 15 पाई बाई 4, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो आप क्या लिख सकते हो, कॉट, इसमें अगर हम लिखते हैं कॉट माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट 15 पाई बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं माइनस। नेक्स्ट कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4 16 पाई। ये थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना होगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 11th 12th में मैथ्स पढ़ रहे हो यार, इतना तो आसान हो जाएगा। अब 16 में से 1 गए तो ठीक है, हो गया, तो क्या माइनस अगेन कॉट माइनस पाई बाई 4 और कॉट माइनस पाई बाई 4 माइनस एंड दिस इज अगेन माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस, this is cot पाई बाई 4 and this is equal to 1। ये cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। देखो cot पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी कि 1 हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत छोटा, जल्दी खत्म हो गया 3.2 एक्सरसाइज। हमारे बच्चे इतने तेज ही हो गए कि क्या करें, मुड़ तो कर रहा है कि अभी 3.3 भी कर लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज चुकी है, ब्रेक होता है तो इसको हमको लिखना पड़ेगा एक्सरसाइज के हिसाब से, तो थोड़ा इसको यहीं पे खत्म करते हैं और इसको, लेकिन एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और थोड़ा सा दूसरे बुक से भी क्वेश्चंस करते रहिएगा, ठीक है ना।